हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के जो आज हम चैप्टर करेंगे इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन काफ़ी महत्वपूर्ण है 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए। इसमें जो है हम पॉइंट व्यू एनालाइज करेंगे। पूरे एनसीईआरटी चैप्टर को जो है इसी वीडियो में हम कवर करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम पॉइंट व्यू हर एक बात का एनालाइज करेंगे, समझेंगे और जानेंगे, और ये आपके लिए एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सारे पॉइंट काफ़ी महत्व रखेगा, लेकिन पॉइंट डिस्कस करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। Environment and Natural Resources, Class 12, CBSE NCERT. There is a political science here. But next and last point arrive here, that's important for the exam view here. The point here, environmental moment. The environmental moment, that's the most important here. You know that discuss the all of here, but environmental moment, this is the most important. The environment movement, apart from the governments of different countries, environmental activities active in a different part of the world have launched many movements at the international and local level regarding the protection of the environmental, such as forest movement of South countries, Mexico, Chile, Brazil, Malaysia, Indonesia, Africa, and India. You know that's important. The forest movement all over the world here. There is the country of Mexico, Chile, Brazil, Malaysia, Indonesia, Africa, and India. That's important. The next movement here, movement against the mineral industry in Australia. There is the most important movement here. The movement against mineral industry in Australia, the movements against the big dam in Thailand, South Africa, Indonesia, China, and India, of which the India has a Narmada Bachao Andolan is a famous. You know that the movement is listed as a very big, but some movement here, forest movement of South country, Mexico, Chile, Brazil, Malaysia, Indonesia, and Africa, and India. The movement against the mineral industry in Australia. There is a mineral industry in Australia, and the movement against the big dam. The big dam is Thailand, South Africa, Indonesia, China, and India. You know that India has a Narmada Bachao Andolan is a very famous. But see the 3 point, a maximum 2 side Indian movement they consider here. That's important. The next point here, geopolitics of resources. You know that geopolitics of resources here. The main reason for the expansion of the European countries has been to the economic exploitation of the subordinate countries here. The more resources as a country has, the stronger its economical will be. You know that geopolitics of resources, this important resources here. And there is a main reason for the expansion of the European country has been to economical exploitations of the subordinate
country. That's important. The next year, timber. The timber is the most important. Western country capture the forest of other countries to be built ships so that their navy could be strengthened and the foreign trade could be increased. You know that timber is important. The western country and capture their forest of other country to be built ships so that their navy could be strengthened and the foreign trade could be increasing here. The next year, oil resources. Oil resources is important. After the World War, the importance of those countries which had any resources like uranium and oil increased. Developed countries developed troops on the sea routes for the uninterrupted supply of oil. You know that's important here. Oil resources. There is oil resources like uranium and oil decreasing. And developed country deployed troops on the sea routes from the uninterrupted supply of oil. That's important. Next year, water. The water is the most important here. There were a fight over to control and distribution of water. There are 4 claimants to be waters of the Jordan River. Israel's Jordan, Syria, and Lebanon. That's the water has a fight over control. The fight over each other, there's a claimant to be the water for the Jordan River. Israel, Jordan, Syria, and Lebanon. There is the most important here. The next year, native. There are native in the 1982. The United Nations described as the indigenous people. Those people who had been to the living in the present country for a long time and even later as a subject treated by their other cultures or castes. In India, the word tribes or Adivasi from Indonesia was used. Is a use for? That's important. No, that's important. Because 1982, the United Nations described as the Indonesia's people, those people who had been living in the present country for a long time. That's important here. And there is India, the word used here, tribe, yeah, Adivasi, for indigenous was used. You know that in 1975, the World Council of Indigenous Peoples was formed. That's important. 1975, the World Council of Indigenous People was formed. The main demand for the indigenous people is that they should be considered as a community with there is the own independent identity. Independent identity, that's important. And secondly, attention should be also be paid to be a problem of their displacement and development due to the project going on the sign independent. That's important here. There is 2 problems here. There is a main demand of the indigenous people that they should be considered as a community with their own independent identity. And secondly here, attention should be also be paid to be a problem of their displacement and development due to the project going on sign independence. That's important here. और ये कक्षा 12वीं CBSE NCERT के अंतर्गत है। और यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारा आखिरी और अगला टॉपिक है पर्यावरण आंदोलन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट व्यू काफ़ी महत्वपूर्ण त्रिपान स्टडी सेंटर ने आपके लिए लाया है, जिसमें आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। जो बच्चा ये वीडियो देख लेता है पूरा, समझिएगा उसको हर एक पॉइंट जो है सिलेबस का अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे चैप्टर का निचोड़ है। यानी चैप्टर में जो है NCERT के अंतर्गत उन्हीं बातों को यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने उजागर किया है और ये पॉइंट व्यू काफ़ी महत्व रखता है। और देखा जाए तो ये काफ़ी महत्व रखेगा। हमारा जो पर्यावरण आंदोलन आया है, तो आपको तो बता दूं मैं एक बात क्लैरिटी के साथ कि भारत तो आंदोलनों का देश माना जाता है, जहां पर अक्सर आंदोलन हुए हैं। लोगों ने अपने पर्यावरण के अंतर्गत, चाहे आप उसको धार्मिक तौर पे लो, चाहे किसी भी रूप में लो,
लेकिन देखा जाए तो इंडिया के लोग काफ़ी जागरूक हैं। कहते हैं पेड़ को हमारे देश में पुरातन समय से पूजा करने की परंपरा रही है। हम वृक्षों को जो है देवी देवताओं का वास समझते हैं और उनको पूजा भी करते हैं। कई ऐसे पेड़ हैं जिनको हम ईश्वर के प्रतीक मानते हैं। और चलिए ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे ये तो होता है कि उन पेड़ पौधों को संरक्षित मिल जाती है। लेकिन जिस प्रकार भारत आधुनिकता में आगे बढ़ा है, इन पेड़ पौधों को जो पुराने समय में दर्जा दी गई थी वो ख़त्म कर दिया है। पहले के समय में पीपल को कहते हैं सम्मान के साथ जो है पूजा पाठ की जाती थी, नीम की पूजा पाठ की जाती थी। और जिस क्षेत्र में ये पेड़ पौधे होते थे वहाँ पर किसी प्रकार का जो है बिल्डिंग नहीं बनाई जाती थी। उन पेड़ पौधों को संरक्षण करने के लिए सुरक्षित छोड़ दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिकता की आड़ में आगे बढ़े, हमने उन पेड़ पौधों को भी अब निशाने बना रहे हैं और उनको नष्ट इस प्रकार कर रहे हैं जैसे हमारा धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ये कहिएगा कि तिरपान स्टडी सेंटर जो है आस्था के ऊपर बात ला रहा है, लेकिन यहाँ पर ये आस्था की बात नहीं रही। बात ये है कि हमने प्रकृति को संरक्षण करना है, चाहे आप उसको देवता के रूप में लो या किसी भी रूप में लो। कहते हैं अगर संरक्षण किसी चीज़ का हो जाता है और हमारे भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट रहता है तो उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। अगर आप पेड़ पौधों को कहते हैं ईश्वर के प्रतीक मानते हो, उसको नहीं काटते हो, उसको संरक्षित करते हो, तो आप जैसा महान कोई होगा नहीं। क्योंकि पेड़ पौधे तो एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेड़ पौधा नहीं तो इंसान की अस्तित्व नहीं। और देखा जाए तो भारत में हम बेशक ये कहते हैं कि यहाँ के लोग समझदार नहीं हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन मैं एक बात सच्चाई के साथ कह सकता हूँ कि पर्यावरण के प्रति भारत जैसा देश सबसे अधिक जागरूक है। और विदेश में ऐसा कोई भी देश नहीं है जितना जागरूक भारत का देश में लोग रहते हैं। और यहाँ पर तो आपको पता है पेड़ पौधे बचाने के लिए चिपको आंदोलन का भी अनुसरण किया गया और इवन बहुत से आंदोलन जो हुए, कभी नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, कभी गंगा सफाई योजनाएं चलाई गई। तो भारत में इन चीज़ों के लिए बहुत ही प्रावधान है, जो अच्छी बात है। और मुझे विश्वास है अगर हम आस्था के अंतर्गत रहते हैं तो हो सकता है कि हमारे जो है कहते हैं पानियों की, पेड़ पौधों की, हवाओं की संरक्षित हो सकता है। लेकिन हम जैसे जैसे नास्तिक बनते जाएंगे वैसे वैसे पर्यावरण पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता जाएगा। क्योंकि लोग अपने आप को आस्तिक में से नास्तिक में कन्वर्ट करेंगे तो उनको पेड़ पौधे के लिए मोह माया खत्म हो जाएगा। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए तो पर्यावरण आंदोलन हमारे देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विभिन्न देशों की सरकारों के अतिरिक्त विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर कई आंदोलन किए हैं और ये आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहे हैं। देखा जाए तो इन आंदोलन में बहुत से आंदोलन चलिए देखते हैं। देखा जाए तो दक्षिण देशों में मैक्सिको, चिले, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका और भारत के वन आंदोलन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आंदोलन चलाई गई थी। और ये दक्षिण देशों में चलाई गई और इसमें चिले थी, ब्राज़ील थी, मलेशिया थी, इंडोनेशिया थी, अफ्रीका और भारत के वन आंदोलन, तो इसमें भारत भी सम्मिलित था। ऑस्ट्रेलिया में एक आंदोलन चलाई गई थी, खनिज उद्योग के विरोध में आंदोलन चलाई गई थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर खनिजों के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया में आंदोलन चलाई गई और ये आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। इवन देखें तो थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, चीन और भारत में बड़े बांधों के विरोध में आंदोलन चलाए गए, जिसमें भारत का नर्मदा बचाओ आंदोलन सबसे अधिक प्रसिद्ध है। देखा जाए तो ये सारे आंदोलन जो है बड़े बड़े नदियों पर बांधे बनाने के विरोध में की गई और पेड़ पौधों को नष्ट करने के विरोध में की गई। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 3 पॉइंट पे डिस्कस किए हैं तो यहाँ पर 2 स्थानों पर भारत का नाम रहा है। तो भारत में मैंने कहा ना कि भारत के लोग बेशकली आस्था से जुड़े हुए कार्य करते हैं, लेकिन इनके आस्था में भी कहते हैं महानता छुपी हुई होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है। इसलिए देखा जाए तो भारत को एक काफ़ी महत्वपूर्ण देश समझा जा सकता है, जहाँ पर पर्यावरण के प्रति चिंता भी है और इसके प्रति इज्जत और सम्मान भी है। कहते हैं पर्यावरण को जितना हम सम्मान करेंगे हमारे जीवन में संरक्षण भी उसी प्रकार होगा। और इवन आपने देखा भी होगा कि कोरोना वायरस में कहते हैं भारत के लोगों पर कम इफेक्ट पड़ा और विदेशों में जो है इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। कारण यही था क्योंकि पर्यावरण भी जानती है
कि भारत के लोग जो है पर्यावरण के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और विदेश के लोग जो है संवेदनशील नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जो देश संवेदनशील नहीं है उनमें क्या हालत रही होगी, और ये आपके आँख के सामने था। तो पर्यावरण ने संकेत दे रही है कि जो कंट्री इसका सम्मान करेगी उस कंट्री का ही जीवन अस्तित्व में रहेगा, और जो सम्मान नहीं करेगा उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। जर्नल सी बात है, नष्ट होने का कारण यही है कि जितना आप पर्यावरण को नष्ट करोगे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा और इंसानों के लिए खतरनाक साबित भी होगा। देखा जाए उसके आगे अगर हम बात करें संसाधनों की भू राजनीति, देखा जाए तो संसाधनों की भू राजनीति भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि यूरोपीय देशों के विस्तार का मुख्य कारण अधीन देशों का आर्थिक शोषण रहा है। देखिए, यूरोपीय देश का विस्तार और इसका शोषण का कारण सबसे बड़ी बात थी कि उसके देशों का आर्थिक शोषण ही रहा है। जिस देश के पास जितने साधन होंगे उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी उस देश में संसाधनों की भरमार होगी, और जिस देश में संसाधन होगी वो देश तरक्की के उस चरम सीमा पे पहुंचेगा। तो इसके लिए जो है संसाधनों में भू राजनीतिक होना जरूरी है। इवन देखें तो इमारती लकड़ी, पश्चिम के देशों ने जलपोतों के निर्माण के लिए दूसरे देशों के वनों पर कब्जा भी किया ताकि उनकी नौसेना मजबूत हो और विदेशी व्यापार बढ़े। तो इसमें तो आपको पता ही होगा कि भारत का शोषण विदेशियों ने किया और इमारती लकड़ी का भी विदेशियों ने जम के जो है उपयोग किया, जिनके कारण भारत की अभी ये हालत है। कहते हैं भारत हर क्षेत्र में आगे है, पर्यावरण संरक्षण के नियमों में भी आगे है, लेकिन फिर भी सबसे अधिक पर्यावरण असंतुलन की जो भावना आई है, जो रिपोर्ट आई है पूरे विश्व में, तो वो भारत का ही नाम है। तो ये भी बहुत बड़ी दुखदायक परिस्थिति है। उसके पश्चात हम देखें तो तेल भंडार, कहते हैं विश्व युद्ध के बाद उन देशों का महत्व बढ़ा जिनके पास यूरेनियम और तेल जैसे संसाधन थे, क्योंकि कोई भी देश समृद्ध तब होता है जब उसके पास कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं। भारत के पास बेशकली प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन भारत के पास एक कहते हैं विशाल शक्ति है, मन की इच्छा है। विश्व के बाद उन देशों का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि यूरेनियम और तेल के संसाधन के पास बहुत से बहुत थे। विकसित देशों ने तेल की निर्बाध आपूर्ति के लिए समुद्री मार्गों पर सेना तैनात कर दी, और आपको पता ही होगा कि ऐसा बहुत से युद्ध विकसित देशों ने लड़े जिसमें उनके पास यूरेनियम और तेल की कमी थी, और जिन देशों में इन चीज़ों की संसाधन की भरपूर थी उन देशों में विकसित देशों ने हमला कर उनमें कब्जा करने की कोशिश किया या उसको अपने चाल से हथियाने की कोशिश किया। तो ये बात कहते हैं किसी को नुकसान पहुंचा के आगे बढ़ना ये कदाचित सही नहीं होता है। उसके पश्चात अगर हम बात करें जल की, तो कहते हैं जल जो है जीवन है और जल नहीं तो कल नहीं। ये तो आपने कई जगहों पर स्लोगन सुना ही होगा। कहते हैं पानी के नियंत्रण एवं बंटवारे को लेकर कई लड़ाइयाँ हुई है। जॉर्डन नदी के पानी के लिए 4 राज्य दावेदार हैं, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया एवं लेबनान। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जल के लिए लड़ाई हमेशा ही हुई है, और आज के समय में जल की जितना महत्वता बढ़ गई है, आने वाला समय में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण। कहते हैं एक बूंद भी शुद्ध जल मिलना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे देश भारत में भी जल का जो है बिल्कुल ही दोहन हो रहा है, क्योंकि सरकार की नीतियाँ चेंज हो गई है। आज सरकार पानी फ्री कर रही है तो इसके कारण जल भी दूषित हो रही है, क्योंकि लोग कहते हैं ना फ्री के चीज़ों का जो है दोहन करना भारत की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है, और जिन चीज़ों में भारत के लोगों को पैसा लगता है उनमें वो सोचते हैं, विचारते हैं, फिर उपयोग करते हैं। अब देखिए बिजली का अगर रेट बढ़ जाएगा ना तो भारत के लोग पता क्या करेंगे, कहीं भी जाएंगे फटाक से बोलो या लाइट बंद कर देंगे, और ये भारत की बचत की सबसे बड़ी नीति रही है। लेकिन जैसे जिन राज्यों में भारत सरकार ने बिजली फ्री किया है वहाँ पर दिन रात बल्ब जलते रहते हैं, क्योंकि वो इनका विचार यही होता है कि 300 यूनिट तो हम यूज़ कभी करते ही नहीं है, हम तो मुश्किल से 100 यूनिट यूज़ करते हैं, दिन भर जल भी गया तो क्या हुआ। तो आप देखिए ये नीति सरकार की कितनी महत्वपूर्ण है, इसमें हमारी बर्बादी की जो है सारी कहानी लिखी गई है। पानी का भी ऐसा ही हुआ है। पहले पानी का कीमत लगता था तो लोग समझते थे कि पानी की कितनी कीमत होती है, आज सरकार ने फ्री कर दिया है। अब 1000 लीटर कहते हैं आम इंसान कम ही यूज़ करता होगा, लेकिन भारत सरकार इस बात को नहीं समझी
कहते हैं एक ने एक रास्ता पकड़ा तो सब ने उसी के रास्ते चलने लग गए। और भारत के नागरिक ने भी ऐसे ही जो है लोगों को प्रोत्साहित किया और उनका साथ दिया, उनको विजय दिया। तो जर्नल सी बात है, हम किस बात के समझदार हैं? हमारे पास सब कुछ है, रूल है, रेगुलेशन है, संसाधन है, सब कुछ है, लेकिन हम विवेकहीन हैं। हम समझदारी से कोई भी कार्य नहीं करते हैं। आप देख सकते हो कि बड़े देश पानी के बंटवारे के लिए लड़ाई हो सकता है, जो कि इतने बड़े देश हैं, तो हम तो आम व्यक्ति हैं, हम तो आम साधारण हैं। हमारा देश तो विकसित भी नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल बता सकता हूँ। भारत की कंडीशन देखिए कि एक राज्य में जो है पानी शुद्ध मिलती है और दूसरे राज्य में जस्ट कुछ किलोमीटर की दूरी में पानी अशुद्ध मिलती है। जब हम दूसरे राज्य से कहते हैं पानी दो, तो वो कहते हैं हम पानी आपको क्यों दें? अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत देश में रहते हैं और ये राज्य भी भारत के अंतर्गत है, ये भी राज्य भारत के अंतर्गत है, दोनों का बॉर्डर भी साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन इस क्षेत्र का व्यक्ति जो है गंदे पानी पीने के लिए मजबूर है और दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति जो है अच्छे पानी पी रहे हैं, लेकिन वो अच्छे पानी जो है जो गंदे पानी पी रहे हैं उनको देने को तैयार नहीं है। यहाँ भी भेदभाव हो रहा है। तो अब सोचिए हमारी मानसिकता कितनी महान है और हम कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मूलवासी। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में ऐसे लोगों को मूल निवासी बताया जो मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं। चलिए ये तो बात जर्नल सी है कि कोई व्यक्ति किसी देश में 10 साल या ऊपर रहता है तो वो उस देश का निवासी बन जाता है तथा बाद में दूसरी संस्कृति या जातियों से उन्हें अपने अधीन बना लिया। लेकिन ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में ऐसे लोगों को मूल निवासी बताया जो मौजूदा देशों में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे तथा बाद में दूसरी संस्कृति या जाति से उन्हें अपने अधीन बना लिया। भारत में मूल निवासी के लिए जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए मूलवासी के अर्थ होता है भारत में जनजाति आदिवासी जो पिछड़े हुए वर्ग के अंतर्गत आते हैं और इनकी जो है तादाद भी काफ़ी है और भारत सरकार के द्वारा इनकी संरक्षण भी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र ने इसको जो है मूल निवासी बताया है, लेकिन भारत में इसको जनजाति और आदिवासी शब्द का उपयोग किया जाता है जिसे हम मूल निवासी कह सकते हैं। देखा जाए तो 1975 में मूल निवासियों का संगठन वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल बना। यानी देखा जाए तो 1975 में मूलवासियों का संगठन वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल बना, जो मूल निवासियों की मुख्य मांग यह है कि इन्हें अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय बनाया जाए। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इनको ये बात बताई गई कि मूल निवासियों की मुख्य मांग यही थी कि उन्हें अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाले समुदाय बनाया जाए। तो ये पहली मांग थी। ये देखा जाए तो इंडिजिनस पीपल की पहली मांग थी या मूल निवासियों की पहली मांग थी कि उन्हें अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय बनाया जाए। और दूसरी बात जो इन्होंने अपने समक्ष रखा, सरकार के समक्ष रखा, वो थी आज़ादी के बाद से चली आ रही परियोजनाओं के कारण इनको विस्थापन और विकास की समस्या पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि इनको विकास के कारण जो है बहुत बार संकटों का सामना करना पड़ा, अपने मूल्य स्थान को छोड़ना पड़ा। इसलिए जो परियोजनाएं बनाई गई है उसको विस्थापन विकास की समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाए। तो ये इनकी दो मांग थी और इसे वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल ने मांग रखी थी 1975 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति का शोषण होता है तो उसको मांग रखने का भी अधिकार है और यहाँ पर जो है मूल निवासियों ने अपनी मांगों को बेखूबी रखी और रखना भी ज़रूरी था। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक का सिलसिला जो है ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। यहाँ पर हमने पॉइंट व्यू जो है पूरे चैप्टर का जो है एनालाइज किया, समझा और जाना, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें आपके सिलेबस के अंतर्गत था, एनसीईआरटी के अंतर्गत था। सारे पॉइंट आपको जो है बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर त्रिपाण सेंटर ने बहुत शॉर्ट करके इसको जो है आपके समक्ष रखा, जो काफ़ी महत्व रखता है और ज़रूरी भी है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है जो महत्वपूर्ण था। अगले हम टॉपिक में फिर पॉइंट व्यू मिलेंगे आपसे। अब बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर बनता है। और इसमें आप पीछे नहीं हटोगे, आप क्योंकि भारत के निवासी हो, अच्छे व्यक्ति हो, क्योंकि आपको पता है कि अपना कल्याण
कभी कल्याण नहीं होती है। जग कल्याण, दुनिया कल्याण, यही हमारी विचारधारा है कि सबके कल्याण हो। इसलिए आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। पहली बार मेरे चैनल पे आओ, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, क्योंकि आपको यहाँ पर ही नहीं रुकना है। यहाँ पर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो एक बार जुड़िएगा तो MA तक त्रिपाण सेंटर में ही पाइएगा। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।